Language of chemistry. So I don't know how much you know about the contents of this chapter, but I believe that this chapter is already finished in school. Is it? Okay. Okay. So I believe that you know the basics, but I will teach you from the basics. We will discuss and we will go ahead. ठीक है? Easy है, chapter बहुत easy है. बट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है. और इसका एप्लीकेशन नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th हर जगह. दिस इज़ दैट काइंड ऑफ चैप्टर. क्लास नाइन्थ में फर्स्ट चैप्टर यही है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री. द फर्स्ट चैप्टर इज़ द सेम चैप्टर क्लास 9. सो यू कैन अंडरस्टैंड कितना इम्पोर्टेंट है. सो यू कैन नॉट टेक इट लाइटली. ओके, सबसे पहले आता है सिंबल. सिंबल इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट. मैंने तुम्हें बताया है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट? 118. 118. 118 elements are known till date. ठीक है. So we have 118 symbols. I don't know why I cannot write. Yeah, but we have 118 symbols. ओके, ये सारे सिम्बॉल्स तुम्हें देखने मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में. There is a table called periodic table. Is it there? Is the periodic table there in your textbook? Right? So you can see all the 118 elements over there with their symbols. ठीक है. सो बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे मेरे से कि हाउ मेनी सिम्बॉल्स डू वी हैव टू रिमेंबर. So there is no fixed number to how many symbols you must remember, but uh, do you have a periodic table in front of you right now in your textbook? Can you take it out? Yes, yes. Just keep it in front of you. I'll also bring it here, and I will show you so you can mark some important symbols in your textbook. Let me get a periodic table for you.
Okay. Can you see the table? Okay. So, how many elements, symbols you have to remember? That is the question, right? So, atomic number 1 to atomic number 20, you have to remember every element. हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक. So you see that number over hydrogen at the top. What is the number? 1. Right? Do you see that? You see the number over helium just next to hydrogen on the extreme right. It is number 2. That is the atomic number. That is kind of a roll number. Okay? So if you see, there are numbers over all the elements, and calcium has atomic number 20 over it. So you have to remember all the elements symbols from hydrogen till calcium. After calcium, there are only a few elements which are important and whose symbols you will encounter on a regular basis. So just mark those elements and their symbols. I will guide you. Okay. Uh, Mark atomic number 25, manganese, Mn. Do you see manganese? 25. 26, iron, Fe. 27, cobalt, Co. 28, nickel, Ni. 29, zinc, Cu. Sorry, 29, copper, Cu. 30, zinc, Zn. Then directly 35, bromine, Br. 36, krypton, Kr. Sir, will iodine come? Sorry? Yes, Iodine. that is very far away. I'm reaching there. Wait. I'm on 35. So I'm going sequence wise, number wise. Okay, then directly mark 47, Ag, silver. 50, Sn, tin. 53, iodine, I. 78, Pt, platinum. 79, gold, Au. 80, Hg, mercury. 82, lead, Pb. That's it. That's it. You only have to bother about these. So how many have you marked apart from first 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Sir, 15. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, yeah, correct. So first 20 and these 15, total 35 elements, their names and their symbols has to be memorized by you. अगर ये 35 तुम लर्न कर लेते हो तो तुम्हारा क्लास 10 तक का टेंशन खत्म हो जाएगा. क्लास 10 तक ये इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं, इनके ही सिम्बॉल्स और इनके ही केमिकल्स को हमें पढ़ना है और इनके ही जो इक्वेशंस है उनको बैलेंस करना है. दूसरे कोई एलिमेंट्स जनरली नहीं आते हैं, इक्वेशंस में भी नहीं आता. ठीक है. सो इन ऑल हाउ मेनी एलिमेंट्स, नेम्स एंड सिम्बॉल्स डू वी हैव टू मेमोराइज? We have to memorize the names and symbols of 35 elements in all, in total. Okay. There is something seriously wrong with my program here. OneNote आज बहुत ज़्यादा glitch में. App तो I cannot even open. Let me check again.
ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है. Yes, I can see few things now better than before. ओके, सो ये सिंबल का मीनिंग क्या होता है? सपोज एक सिंबल है हमारे पास एस. तुम्हें पता है एस किसका सिंबल है? यू नो हुज सिंबल इज एस? Sir, sodium. नो, सल्फर. अभी ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, इसको लर्न करना. सोडियम इज Na. ठीक है, एस इज सल्फर. इसको लर्न करने लगो. सल्फर. तो एस का मीनिंग क्या है? एस सल्फर होता है, ये पता है, लेकिन वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स a specific element, that means sulfur, and it represents one atom of sulfur. It represents not only sulfur but one atom of sulfur. ठीक है, इसका एक क्वांटिटेटिव मीनिंग यहाँ पे दिया है. Quantitative meaning is much complicated. It says that uh, S says that how many times one atom of sulfur is heavier than 1/12 the mass of a carbon 12 atom. ये जो इसकी डेफिनेशन है, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट वाली डेफिनेशन. ठीक है, इसको हम लोग साइड में रखेंगे अभी, इसके ऊपर फोकस हमें करना नहीं है. बट इतना मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इफ़ यू गेट एस, एस का मतलब होता है वन एटम ऑफ सल्फर. ठीक है, और वन एटम ऑफ सल्फर का जो मास है, दैट इज एटॉमिक मास, दैट इज 32 यूनिट्स. 32 यूनिट्स एटॉमिक मास यूनिट, वन एटम ऑफ सल्फर. ओके, देन कम्स केमिकल फार्मूला. अब तुम्हें अगर सिम्बॉल्स पता है, यू कैन ईजिली मेक केमिकल फार्मूले. ठीक है, केमिकल फार्मूले दो टाइप के होते हैं. केमिकल फार्मूले रिप्रेजेंट्स द कॉम्पोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग केमिकल फार्मूला का यूज़ करते हैं. अब ये मॉलिक्यूल एक एलिमेंट को बिलोंग कर सकता है, या फिर ये मॉलिक्यूल एक कंपाउंड को बिलोंग कर सकता है. सो व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली ऑन इट्स ओन. सो ये जो मॉलिक्यूल है जो एलिमेंट को बिलोंग करता है, उसका एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ. O2, H2, N2. हैव यू सीन दीज काइंड ऑफ फॉर्मूले अर्लियर? Yes, sir. ये फॉर्मूले देखे हैं तुमने? Yes, sir. O2, H2, N2. What is O2? Oxygen. Very good. H2 hydrogen, N2 nitrogen. So this is one smallest particle of oxygen which can exist on its own. This O2 means a smallest particle of oxygen which can exist on its own, which is chemically unreactive, which can exist freely. Okay, same goes with H2 and N2. They are smallest particles of hydrogen and nitrogen respectively. So O2, H2, N2 are the smallest particles of elements. ठीक है, respective elements. Now ये जो O2, H2, N2 है ना, that is a chemical formula. इसको हम लोग बोलते हैं chemical formula. किसका chemical formula है? ऑक्सीजन का O2, हाइड्रोजन का H2, नाइट्रोजन का N2 and so on. ठीक है, ये हो गया मॉलिक्यूल. कंपाउंड का भी केमिकल फार्मूला होता है, मतलब कंपाउंड का भी एक मॉलिक्यूल होता है. सपोज H2O. H2O इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर वाटर. NaCl, मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट. CO2, केमिकल फार्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. देन HNO3, chemical formula for nitric acid. CuSO4, chemical formula for copper sulfate. तो ये सारे केमिकल फार्मूले हैं कंपाउंड्स के, ये सारे केमिकल फार्मूले हैं एलिमेंट्स के. सो दे बोथ आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ केमिकल फार्मूले. सिम्बॉल्स तो हमने देख लिए, सिम्बॉल से ही केमिकल फार्मूले बनते हैं. सिम्बॉल्स आर नेसेसरी टू फॉर्म केमिकल फार्मूले, रिमेंबर दैट. ठीक है, ओके.
let's talk about valency. We have talked about this earlier. Have we talked about? हमने last chapter atomic structure पढ़ा था, right? You've studied about atomic structure, right? So I've taught you about uh, the number of shells and the number of electrons present in the outermost shell. Okay, cool. Let's talk about that in detail. Let's refer to the periodic table. Do you see here on the left hand side, do you see sodium? What is the atomic number of sodium? 11. Is it 11? Okay. What is the atomic number of magnesium? 12. Atomic number of aluminium? 13. Okay, I want you to focus on sodium, magnesium and aluminium. These are our typical elements, typical metals: sodium, magnesium and aluminium. You know, Niels Bohr taught us how to find the electronic configuration on the basis of atomic numbers, right? Sodium ka atomic number, which is Z, which is 11. Can you tell me the electronic configuration of sodium? So can I tell? Yeah, please. Yes, sir. So the electrons in it will be also 11, Correct. and the protons also will be 11. Okay. And if we want to find neutrons, it will be atomic mass minus atomic number. Yeah, but I don't want neutrons. I want electronic configuration. Yeah. So let us start. Electrons will be also the same, and protons will also be the same. Okay, how the electrons are distributed, I want that. Electronic configuration, if you remember. Oh, okay. So that okay. So sir, like there are some shells, and the shells are K, L, M, and N. KLMN. Yeah. So KL. K, L, N, M. Hmm. How are the Uh, electrons distributed in these shells? so What is the for rule? yes sir. So for sodium, uh, two electrons will go to K shell. Hmm. 8 electrons will go to L shell, Hmm. and 1 electron will go to M shell. Okay. Magnesium. Atomic number is 12. If you look at your periodic table, you will understand. Kea, can you tell me the electronic configuration? Yes, sir. 28282. Very good. Aluminium. Atomic number is 13. Aditya, can you tell me the electronic configuration? Yes sir. So it will be 2, 8, 3. Okay. So these are three metals from our periodic table, and as we can see over here, the number of electrons in the outermost shell are either 1, 2 or 3. All the metals in the periodic table, they have 1, 2 or 3 electrons in the outermost shell. The number of electrons in the outermost shell are 1, 2 or 3. All the metals. So this is the characteristics of metals. Please note this down. All metals have 1, 2 or 3 electrons in their outermost shell. All metals have 1, 2 or 3 electrons in the outermost shell. Okay.
Now, let us talk about the chemical reactivity because that is important now. Now, do you see in the rightmost group or vertical column of the periodic table there is helium, neon, argon, krypton, xenon? Do you see them? ये जो नियॉन है ना नियॉन, कैन यू टेल मी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ मेरे को, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? Sir, it is 10. 10 ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा नियॉन का? 2, 8. वेरी गुड, 2,8. व्हाट अबाउट आर्गन? केया, केया, आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है? 288. वेरी गुड, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 288. और अगर तुम दूसरों का देखो, क्रिप्टॉन, हीलियम, ये सब ये सिमिलर एलिमेंट्स हैं. इनको क्या बोलते हैं पता है? द लास्ट ग्रुप, 18th ग्रुप. यस, Sir, these are noble gases. वेरी गुड, नोबल गैसेस. व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ नोबल गैसेस? यस. Sir, that they are like stable. They are not unstable like other elements because the shells are completely filled. Very good. So they are chemically non-reactive and they are stable, and they do not have incomplete shells. Their outermost shells are completely filled. As you can see from this electronic configuration which I have written, how many electrons are there in the second shell? 8. In the third shell over here, 8. So the second shell and the third shell over here is the final shell, last shell, and it is completely filled. If the last shell is completely filled, that means that particular atom of that element is chemically unreactive or stable. It does not require any electrons, or nor does it have any extra electrons to give away. So it is chemically stable. ठीक है. तो अब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम. ये बेचारे केमिकली स्टेबल नहीं है, इनको स्टेबल बनना है. ठीक है. सो अगर मैं तुमसे पूछूं कि सपोज तुम्हारे क्लास में एक कोई बहुत ही स्कॉलर बच्चा है, आदित्य, बताओ उसका नाम, तुम्हारे स्कूल में. मेरे स्कूल सर I'll say Abhijat. ओके. Sir, you're asking me, right? यस यस यस, आई एम आस्किंग यू आदित्य. तेरे स्कूल में क्या नाम है उसका? Yes. Abhijat. किसकी, कौन सी जात? Abhijat. अभिजात, क्या नाम है यार ये? व्हाट इज दिस? नाम ही उसको ट्रोल कर रहे हैं हम सर लोग. हमारे स्कूल में ऐसे ही नहीं नाम है. ठीक है, अभिजात, अभिजात, ओके. अभिजात स्कॉलर है, राइट? अभिजात का कितना परसेंट आता है? सर 90%. मतलब वो टॉप पे, टॉप पे है वो, राइट? सर मैंने भी लाया था, मतलब मैंने भी 90%. अरे तेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं यार मुन्ना, तेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं. अभिजात की बात कर रहे हैं ना हम लोग. अभिजात अभी टॉप पे है. 95 है, किस 95. अच्छा ठीक है, ठीक है, टॉप पे मान ले. अच्छा अभी मुझे बता, अभिजात तो नंबर 1 है, छोड़ दे उसको, उसकी बात तो छोड़ ही दे. लेकिन तेरे से जस्ट ऊपर कौन सा स्टूडेंट है जो जो जिसके साथ तेरी कंपटीशन होती है? अभिजात तो अलग प्लैनेट से आया है, एलियन है वो. लेकिन तू कहाँ, तेरे से जो नियर अबाउट जस्ट आगे रहता है, वो कौन सा लड़का है या लड़की? आदित्य प्रकाश. आदित्य प्रकाश, ओके. एपी, AP. हाँ, ए बी से आगे एपी, ओके. तो अगर तेरे को ऑप्शन दिया कि तेरे को कंपटीशन करनी है एंड यू हैव टू बिकम लाइक समबडी, विल इट बी इजियर फॉर यू टू बिकम लाइक आदित्य प्रकाश और टू बिकम लाइक अभिजात? आदित्य प्रकाश. है ना? तो क्योंकि वो तेरे तेरे से नज़दीक है, उसका उसका जो परफॉर्मेंस का रेंज है या फिर उसके जो मार्क्स है वो तेरे मार्क्स से बहुत नज़दीक है. यू कैन ईजिली बिकम, यू कैन ईजिली बीट हिम और यू कैन ईजिली बिकम लाइक हिम. के या डू यू अंडरस्टैंड दिस कन्वर्सेशन? फॉर
AB, it is easier to become AP because he is the nearest in the performance level. ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ. ये देखो, ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 11, और ये नियॉन है, इसका एटॉमिक नंबर है Z, सॉरी Z इज इक्वल टू 10, और ये आर्गन है, इसका एटॉमिक नंबर है 18. ठीक है, सोडियम किसकी तरह बनना चाहेगा? सोडियम विल ट्राई टू बिकम लाइक नियॉन और आर्गन. उसके लिए क्या इजी होगा? क्योंकि ये दोनों आइडियल है. आइडियल मतलब दे आर नोबल गैसेस, दे आर आइडियल. ठीक है, तो सोडियम को अगर ऑप्शन दिया जाए कि बेटा तुम आइडियल चूज करो अपने क्लास का टॉपर, तो उसके क्लास में दो टॉपर है, नियॉन है और आर्गन है, तो वो किसकी तरह बनना चाहेगा? सोडियम. उसके लिए इजी होगा ना? डू यू एग्री क्या? सोडियम के लिए नियॉन जैसा बनना इजी होगा. और एक इसका और एक प्रूफ देता हूँ मैं तुमको. इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसका 10 है. देर इज़ वेरी स्मॉल लिटिल गैप. इनफैक्ट देर इज़ नो गैप, इट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू नियॉन. तो जितना छोटा एटॉमिक नंबर का गैप होगा बिटवीन द आइडियल, द नोबल गैस एंड द पर्टिकुलर एलिमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, उतना इजी उस एटम के लिए उस नोबल गैस जैसा बनना हो जाएगा. ठीक है, सो सोडियम के लिए इट इज़ ईजियर टू बिकम लाइक नियॉन. व्हाट अबाउट मैग्नीशियम? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, नियॉन का 10 है, आर्गन का 18 है. मैग्नीशियम विल बिकम लाइक, it will be easier for magnesium to become like whom? Sir, neon. Again neon. What about aluminium? Again neon, right? Again neon. So these three, ये तीनों स्टूडेंट का जो आइडियल है कि मुझे इसकी तरह बनना है, वो आइडियल कौन है? नियॉन है कि नहीं? एक मिनट, जस्ट. वरुण, यस. लेक्चर चल रहा है. ओके ओके, ठीक है ठीक बाय. है. मोना फ्री है? नहीं, उसका भी लेक्चर चल रहा है. ओके ठीक है, बाय. मैं करता हूँ. ये सही है ना? कोई कुछ बोल नहीं पाए, लेक्चर चल रहा है, मत डिस्टर्ब करो यार. ओके. तुम भी बोल सकते हो अपने दोस्तों को. अभिजात, मीट माय सर. ओके, तो ये तो पता चल गया कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को किसकी तरह बनना इजी होगा. सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को नियॉन की तरह बनना होगा. अब क्वेश्चन है हाउ. तो लुक एट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये जो अपना नियॉन है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, वो है 2 8, और सोडियम का है 2 8 1. हाउ कैन 2 8 1 गेट कन्वर्टेड इनटू 2 8? हाउ कैन 2 8 1 बिकम 2 8? कैसे हो सकता है ये? यस आदित्य. Sir, by losing the electron. Very good, very good. So by donating, losing, giving away one electron, these elements can become like a neon. Not only one element. Sodium can lose one electron. Magnesium can lose 2 electrons, and aluminium can lose 3 electrons to become like neon. There is no other way. You understand that there is no other way by which these elements can become like neon, by which these elements can achieve chemical stability. अगर उनको chemical stability चाहिए तो बस एक ही काम है उनके पास, इलेक्ट्रॉन डोनेट करो, बन जाओ आदित्य प्रकाश, बन जाओ. है कि नहीं? There is no other way. There is no other way they can achieve a stable electronic configuration and they can become chemically unreactive. The only way is to donate electrons.
तो ये चीज़ ना सिर्फ इन तीनों पे नहीं, मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम पे नहीं, लेकिन ये चीज़ सारे मेटल्स के लिए एप्लीकेबल है, फॉर ऑल मेटल्स। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिखवाई थी, एक स्टेटमेंट लिखवाया था मैंने, दैट इज ऑल मेटल्स हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, सो मेटल्स मस्ट डोनेट their electrons in the or from the outermost shell, I'm sorry, from the outermost shell. Metals must donate their electrons from the outermost shell to achieve stable electronic configuration. Metals must donate their electrons from the outermost shell to achieve stable electronic configuration. What is stable electronic configuration? Complete outermost shell, like neon, like argon. तो मेटल्स को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं मेटल? 1, 2 या 3। अब एक चीज़ याद रखना, जितने इलेक्ट्रॉन मेटल डोनेट करते हैं वही उनकी वैलेंसी होती है। ठीक है, सो और एक पॉइंट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ये सारे पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा है। ठीक है, सीधा मैं जब पूछूंगा ये स्टोरी याद रहनी चाहिए तुम लोग को नेक्स्ट टाइम। सो hence I can say that number of electrons donated is equal to valency of metals. Number of electrons donated is equal to valency of metal. Example, सोडियम जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2, 8, 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, इट विल गिव अवे 1 इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन, एंड इट विल बिकम सोडियम आयन, सोडियम आयन जिसकी वैलेंसी होगी 1+। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा नियॉन जैसा 2, 8। अब ऐसा क्यों हुआ पता है? 1+ क्यों आया? वैलेंसी ठीक है 1 है उसकी वैलेंसी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, लेकिन ये प्लस की साइन क्या है? यस आदित्य। Sir, it tells that like it donated one electron, so there will be plus sign, and if somebody gains, it will be 1 minus. ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बट इसके पीछे एक रीज़न और है जो मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके लिए तुम्हें सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर को याद रखना पड़ेगा। अब सोडियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अब वो है 10, लेकिन क्या उसके प्रोटॉन में कोई चेंज आता है क्या? नहीं, प्रोटॉन रिमेन्स एज इट इज, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आ रहा। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स P+, वो कितना रहेगा? 11। राइट राइट, प्रोटॉन्स आर नॉट डोनेटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड। अर्लियर व्हाट वाज द केस? प्रोटॉन्स कितने थे? 11। इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 11। मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बोथ वर इक्वल। इफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल, that means that the atom is electrically neutral. पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एटम न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ, वो केमिकली अनस्टेबल है बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यू कैन नोट दैट। सोडियम का एटम केमिकली अनस्टेबल है या फिर रिएक्टिव है। ठीक है, बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मैं फिर से पूछता हूँ, केया को पूछता हूँ मैं, केया, व्हाई डू वी से दैट इट इज केमिकली अनस्टेबल और रिएक्टिव? यस केया, अनम्यूट, फिर म्यूटेड।
I cannot hear you because you are on mute. ठीक है, you figure out the issue. Aditya? Yes, sir. Yes, sir. Sir, it is chemically unstable because it always tends to react with some other element to form to become No, stable. But no. It is chemically unreactive, unstable and reactive because its outermost shell is not completely filled. बस एक ही रीजन याद रखो, its outermost shell is not completely filled. Okay, yes, but why is it electrically neutral? sir, because number of electrons and protons is the same. Very good. So positive and negative charges balance each other and it becomes electrically neutral, but chemically unstable. ठीक है, अब क्या हुआ? अब उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया. नाउ इट हैज़ बिकम Na1+, जिसमें प्रोटॉन्स 11 है और इलेक्ट्रॉन 10 है. ठीक है, इट हैज़ बिकम केमिकली स्टेबल जस्ट लाइक नियॉन, अनरिएक्टिव, है ना? But it has become electrically charged, electrically positively charged. ये एक उसके साथ उसके पास एक नई कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई. क्यों पॉजिटिव चार्ज आया उसके पास? बिकॉज इफ यू सी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर वन मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. डू यू सी दैट? एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया. प्रोटॉन तो कहीं गया नहीं, प्रोटॉन तो डोनेट हुआ नहीं है, प्रोटॉन तो वहीं था. 11 प्रोटॉन्स पहले भी थे, अभी भी है. इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, डोनेट हो गया. सो इलेक्ट्रॉन्स बिकम वन लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दैट्स व्हाई इट अक्वायर्ड वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज. सो ये जो 1+ है ना, ये दैट्स नॉट एन इंटीजर. ये वो मैथमेटिक्स का +1 -1 नहीं है, ये नंबर नहीं है. दिस इज जस्ट, इट जस्ट शोज दैट इट हैज यूनिट पॉजिटिव चार्ज. यस आदित्य. Sir, so like how does this? How will it lose an electron? या वो स्टोरी का सेकंड पार्ट है. सीजन 2 में पता चलेगा कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा. उसके लिए तुम्हें सेकंड मूवी का पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा ना. सीजन 2 तो देखते हैं सीजन 2 में आगे क्या होता है. सीजन 2 इज अबाउट नॉन मेटल्स. डू यू वॉच एनी सीरीज? एनी विच इज योर I फेवरेट already सीरीज? watched. Yeah, I already watched Netflix one of the series, Which series is your favorite? The Unlisted, and it's on Netflix. I've never heard of that. Yeah, sir. Sir, ए actually my अनलिस्टेड ही father है वो, also. मतलब नाम भी नहीं पता. अनलिस्टेड. Yeah, it's like it's actually very nice. So actually, my father made one of he made my profile. So ओह I got that as a recommendation. नाइस नाइस. ओके, तू चिल्ड्रंस प्रोफाइल में है क्या? Yes, अच्छा अच्छा. ओके I'm not allowed to watch 18 plus. ओके ओके ओके. गुड गुड गुड. नाइस. अनलिस्टेड. ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. तो सीज़न 2 अभी शुरू हो रहा है. सीज़न 2 इज़ अबाउट नॉन मेटल्स, है ना? बिकॉज वी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट मेटल्स. नॉन मेटल्स के बारे में हम नहीं जानते हैं कुछ. अभी नॉन मेटल्स बताता हूँ मैं तेरे को. सी, मैं कॉन्सेप्ट बेस सिखा रहा हूँ, ठीक है? मैं इसको डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से सिखा सकता हूँ, बट ये क्या हो रहा है? आई एम सॉरी. हाँ, उप्स. इतना वियर्ड है ना इसके साथ काम करना, कहीं कुछ भी हो रहा है. अच्छा, एनीवेज, नॉन मेटल्स. So you can use Word. अरे वर्ड में आई कैनॉट ड्रॉ विथ माई, कैनॉट ड्रॉ. No, sir, I can draw with my pen on that. I did it. व्हाट पेन यू हैव? Uh, my Windows, Microsoft. This one, sir. What kind of tablet you have? Sir, it's Microsoft. सरफेस, Microsoft. सरफेस प्रो. Yeah, yeah. क्या बात कर रहा है यार, तो बहुत मस्त लैपटॉप है यार, बहुत अच्छा है वो तो.
prefer giving. नाइस यार. रुक जा. केया को कैसे हम लोग, केया बोल रही है उसको अनम्यूट कैसे, हाउ डू आई से दैट? Sir, you can request, you can try that. केया, You can you request- speak? Hello, sir. Now I'm able to unmute. Oh, great. Sir, I actually got disconnected, so अच्छा, नो प्रॉब्लम. यार वी वर वंडरिंग क्या हो गया तेरे को, सीजन 2 में ये कैरेक्टर किधर चला गया. डिड यू हियर अस सीजन 1 सीजन 2? कुछ सुनाई दिया तेरे को? नहीं. no, sir. What were you talking about? वी वर टॉकिंग अबाउट अरे आदित्य, व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट? Sir, we are talking about how we are talking about metals. Yeah, how they lose electron and they become positively charged. Nice. Okay. Yeah, so metals, they generally lose electron and they become chemically unreactive, but they become positively charged, and the number of electron they lose, it shows their positive charge, and that is known as its valency. So sodium की valency 1 plus है. So in the similar way magnesium की valency guess कर सकते हो क्या तुम सीजन 2 में जाने से पहले? Recap. What will be the valency of magnesium? Sir, here's manganese. No, magnesium Mg इधर लिखा है ना, Mg. बुक में नहीं देखना, इधर देखना. Yeah, it's मैग्नीशियम it की will be plus 2. Plus 2. 2 plus Oh, yeah. 2 plus. Mg 2 plus. And can you explain why? Yeah, tell. Sir, because its outer shell has 2 electrons, yes. Which it will so donate. we have to donate it. So yeah, and become like neon, right? Yes. And that's why it will have the valency 2 plus. And aluminium will have valency of 3 plus. 3 plus because it will donate 3 electrons. So metals generally have valency of 1 plus, 2 plus, 3 plus. Simple. Metals का simple हिसाब है. Valency 1 plus, 2 plus, 3 plus ही होता है. ठीक है, लेकिन किसका क्या है वो तुम्हें लर्न करना पड़ेगा. Some metals also have variable valency. Some metals also have variable valency. ठीक है, वो सब हम लर्न करेंगे वैलेंसी चार्ट के साथ. यस आदित्य. Sir, so like if they become positively charged, does it mean that they'll become magnets? No. They'll not become not magnet. They will attract negatively charged particles or ions. You know these positively charged particles are known as ions, and their name is cations. Cations बोलते हैं इनको. ठीक है. So So anions will be that, negatively charged. Yes, anions are negatively charged. So they will attract anions, but it is not a magnetic property, it is electrical property. ये इनकी electrical property है. ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. और अब सीजन 2 शुरू करने का टाइम आ चुका है. So let us talk about that. Okay. So again I'm going to open the periodic table. Do you see all the elements starting from atomic number 14, 15, 16, 17? Do you see them? Silicon, phosphorus, sulfur and chlorine. ये जो है ना, ये सारे नॉन मेटल्स है. सिलिकॉन को अभी हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं. फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन पे थोड़ा फोकस करते हैं. फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है? 15. क्लोरीन का सल्फर का 16 और क्लोरीन का 17. सो फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17. चल फॉस्फोरस का मेरे को बताओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. 285. 285. वेरी गुड. सल्फर 286. and chlorine, 287. right?
ओके, तो नॉन मेटल्स का देखा तुमने? नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में there are 5, 6 or 7 electron. There can be 4 electrons also in the outermost shell. So non-metals have 4, 5, 6 or 7 electrons in their outermost shell. ठीक है. अच्छा, अब ये जो नॉन मेटल्स है इनका आइडियल या आइडल कौन है? हु इज देयर आइडल? Argons? नियॉन को हमने देखा, इसके आउटर मोस्ट शेल में, सॉरी, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 2,8. उसके बाद था आर्गन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 2,8,8. ओके, नाउ फॉर फॉस्फरस टू बिकम लाइक नियॉन it has to donate 5 electrons, which is impossible. An element cannot donate more than 3 electrons. But for phosphorus to become like argon, it has to gain 3 electrons, and it is possible to gain 3 electrons. Similarly, for sulfur to become like argon, it has to gain 2 electrons, and for chlorine to become like argon, it has to gain 1 electron. So non-metals, they gain electrons. Non-metals have 4, 5, 6 or 7 So they electrons. gain electrons by reacting with metals. Isn't it? Yes, yes. Non-metals have 4, 5, 6 or 7 electrons in their outermost shell. To achieve chemical stability, they tend to gain 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन. इधर मैं ब्रैकेट में एक और चीज़ लिखता हूँ जिसका हम लोग बाद में समझेंगे इसको. they may also share 4, 3, 2 or 1 electrons to complete their outermost shell. So apart from gaining, they have one more option open. They can share electrons because they are in need of electron. Metals का तो अलग ही सीन था, वो लोग they wanted to just donate. शेयरिंग का ऑप्शन नहीं था उनके पास, उनको सिर्फ डोनेट करना है. नॉन मेटल्स दे नीड इलेक्ट्रॉन्स, सो दे कैन ईदर गेन और दे कैन शेयर सर्टन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल. और ये शेयरिंग वाला क्या है सीन, इसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट शेयरिंग वाला अभी, बट यू शुड रिमेंबर दैट दिस इज पॉसिबल, दैट नॉन मेटल्स कैन ईदर गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, अगर नॉन मेटल सपोज इलेक्ट्रॉन गेन करता है एंड टू बिकम लाइक आर्गन और समबडी एल्स, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 287. इट वांट्स टू बिकम लाइक argon, that is, it wants 8 electrons in the outermost shell. What will it do? It will gain 1 electron and it will become Cl288. अब पहले उसके पास जो प्रोटॉन्स थे वो थे 17, इलेक्ट्रॉन्स थे वो थे 17. अब उसके पास प्रोटॉन तो उतने ही रह गए 17, बट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए अब उसके पास? 18. सो सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर 1 मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्लोरीन की वैलेंसी है 1 माइनस. सो नॉन मेटल्स हैव नेगेटिव वैलेंसीज लाइक क्लोरीन. ठीक है, तो मुझे बताओ सल्फर का क्या होगा. सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 286. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल इट गेन? Said to be 2 minus. 2 electrons it will gain and its valency will be 2 minus. Phosphorus का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 285. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल इट गेन? 3 minus. 3 electrons. And what will be its electronic configuration? P3 minus. So like that, all the non-metals have negative valencies because they gain electron.
all the metals have positive valency because they lose electron to complete their outermost shell. ये सब क्यों कर रहे हैं वो लोग? To complete their outermost shell, to achieve chemical stability. क्या अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारे दिमाग में? वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. ओके. See the valencies. Valency chart is given. Maybe in your book also it might be given. Do you have valency chart in your book? Yes, sir, we have that. You have, na? How many elements do you have? Positive and negative. You should have all these elements. Yes, sir, we have that. You know what is your criteria? Your objective is to learn this chart. If you do not learn this chart, you cannot form chemical formula. If you cannot form chemical formula, you cannot learn balancing the equation, which is our next target. तुम्हें अगर बैलेंसिंग इक्वेशन सीखना है तो तुम्हें केमिकल फार्मूले लर्न होने चाहिए. केमिकल फार्मूले तो थाउजेंड्स में, तो सारे तो लर्न नहीं कर सकते. उससे बेटर है वैलेंसी लर्न कर लो, बिकॉज वैलेंसी इतनी है. दिस इज़ द वैलेंसीज, दिस दैट्स इट. इससे ज़्यादा वैलेंसी नहीं है. ठीक है. सो इट्स बेटर दैट यू लर्न ऑल द वैलेंसीज. ठीक है, लर्न करो इसको, वैलेंसी को, और उससे हम लोग केमिकल फार्मूले बनाएंगे और उससे हम केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे. सो दिस इज़ योर फर्स्ट टास्क फॉर टुडे, यू टू लर्न द वैलेंसी चार्ट. हाउ यू विल डू इट, इट्स ऑल टोटली अप टू यू. तुम लिख के करो, लर्न करो, रीड करके करो, लेकिन ये लर्न होना ही चाहिए. दिस इज़ वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस आई एम गिविंग यू. अदरवाइज आगे हम चैप्टर पढ़ के ख़त्म कर देंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. Okay, do you see that there are certain elements which have variable valency? Do you see copper has valency 1 plus and it also have valency 2 plus in the valency chart? तो कुछ metals ऐसे होते हैं जिसकी variable valency होती है. Silver has valency 1 plus as well as 2 plus. Then iron has valency 2 plus and valency 3 plus. वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं इसको. तो कुछ मेटल्स की वैलेंसी वेरिएबल होती है. नॉन मेटल्स में वेरिएबल वैलेंसी नहीं होती है, मेटल्स में वेरिएबल वैलेंसी होती है. ठीक है. सो ये एक वेरिएबल वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट है. ये भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि किसकी वेरिएबल वैलेंसी और क्या है. अगर तुम्हारे मतलब केमिकल फॉर्मूला तुम्हें पूछते हैं and they ask you with this kind of symbol 1, ऐसा अगर वो लोग लिखते हैं कॉपर 1 तो वैलेंसी 1 है. अगर वो लोग लिखते हैं कॉपर 2 तो वैलेंसी 2 है. सिंपल है, इसको याद रखना. बट इफ़ दे आस्क यू द नेम, तो अगर कॉपर की वैलेंसी 1 है, मतलब लोअर वैलेंसी है, तो उसका नाम थोड़ा अलग हो जाता है. क्यूप्रस, क्या बोलते हैं उसको? क्यूप्रस. लेकिन अगर उसकी वैलेंसी 2 है, हायर वैलेंसी, तो क्यूप्रिक. क्यूप्रस, क्यूप्रिक. वैसे ही आयन की लोअर वैलेंसी को बोलते हैं Cuprum is also there, right? क्यूप्रम. नहीं है, Oh, नहीं है, क्यूप्रम नहीं है. क्यूप्रस, क्यूप्रिक. आयन का है फेरस और हायर वैलेंसी है फेरिक. ठीक है. सिल्वर का है आर्जेंटस एंड हायर वैलेंसी आर्जेंटिक. बट ये ऐसा नहीं पूछते हैं. दिस इज द ओल्ड वे. दिस इज द ओल्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग हायर एंड लोअर वैलेंसीज. द न्यू वे इज द रोमन न्यूमरल. कॉपर 1, कॉपर 2, सिल्वर 1, सिल्वर 2, आयन 2, आयन 3. ठीक है. सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस. अच्छा, इन सब में से सबसे अलग एक एलिमेंट है, एक रेडिकल है, या फिर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक वैलेंसी है. देखो, सेकंड नंबर दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, क्या नाम है? अमोनियम. कैन यू सी दैट?
अमोनियम, अमोनियम का वैलेंसी क्या है? 1 plus. NH4 प्लस, Yeah. NH4 प्लस, हाँ मतलब 1 प्लस। इसका फॉर्मूला है NH4 अमोनियम का, और उसकी वैलेंसी है 1 प्लस। अब ये जो है ना, ये NH4, इसमें एक नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन है जिसमें टोटल कुल मिला के 5 एलिमेंट्स है, एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन, और ये एक साथ रहते हैं और एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं, एंड दिस इज नोन एज अ रेडिकल। दिस इज अ रेडिकल, रेडिकल नाम है इसका, रेडिकल, दिस इज अ काइंड ऑफ अ रेडिकल, इट इज नोन एज अ रेडिकल। तो रेडिकल का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, a group of atoms having some negative or positive charges on them which can retain its identity in series of chemical reactions is called a radical. Group of atoms, they always stay together and they have same valency and they can retain their identity in a chemical reaction, it is known as radical. इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल में एक सिंगल एग्जांपल है अमोनियम का, लेकिन इफ़ यू सी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इसमें तुम्हें भर भर के रेडिकल दिखेंगे। कैन यू आइडेंटिफाई वन रेडिकल? Bicarbonate. यस, बाइकार्बोनेट। देखो, हाइपोक्लोराइट, क्लोरेट, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट, बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड, हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनेट, परमैंगनेट, But hydroxide is like is formed like an like sodium nitrogen hydroxide, potassium hydroxide, the same hydroxide. It is OH1 minus. Its valency is 1 minus, and there is one oxygen and one hydrogen atom sticking together, behaving like a single unit and having a single valency of 1 minus. ठीक है, ये सारे कितने रेडिकल है, देखो भर भर के रेडिकल है। तो मतलब तुम्हें ये सब लर्न करना पड़ेगा, सब लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ केमिकल फार्मूला, जो मैं आज तुम्हें सिखाऊंगा। आई विल टीच यू हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूले, ठीक है। क्रिस क्रॉस मेथड मैं तुम्हें बताऊंगा, फिर केमिकल रिएक्शन में हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। सो कीप द वैलेंसी चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू, बट नाउ यू नो ना व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी। ये ऊपर जो माइनस लिखा है, Sir, I don't think we have this chart. It's I can see variable valency and valency chart. Just that one. ये बट यू विल बी हैविंग ऑल द एलिमेंट्स ना इनसाइड। Oh, yeah. हाँ, तो ये तो है ही, तुम थोड़ा अलग फॉर्मेट में है, बट ये चार्ट के बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, चार्ट तो चाहिए। चार्ट के बिना कैसे फॉर्मूला बनाओगे यार, क्योंकि यू डोंट नो द वैलेंसीज ना। सो नाउ यू नो ना वैलेंसी का मीनिंग क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड टू कंप्लीट द आउटर मोस्ट शेल, राइट। ओके, नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू, सी व्हाट आई एम टेलिंग यू, वी हैव सम electropositive valencies and we have some electronegative valencies, right? So Kea, you will name any one random electropositive element with its valency, and Aditya, you will name one electronegative element with its valency, and I will form its chemical formula. मैं उसका chemical formula बनाऊंगा, ठीक है। चलो किया, name one, any one of your favorite from the chart which is in front of you in your textbook. Potassium. Okay. Potassium 1 plus. K1 plus, okay, perfect. K1. Yes. Aditya? Sir, bicarbonate. Bicarbonate is HCO3 2 minus, is it correct? Is it No, sir, correct? it's 1 minus. It's 1 minus, are you sure? Yeah. Sir. आई एम सॉरी, मेरी भी गलती होती है, मेरे को भी याद नहीं रहता, बट एटलीस्ट आई रिमेंबर इट इज HCO3. आई स्वेयर आई एम नॉट लुकिंग एनीवेयर, आई एम नॉट कॉपिंग लाइक यू गाइस।
bicarbonate I remember, so I just do that. ओके नाइस. अब ये दोनों कैसे रिएक्ट करेंगे? हाउ विल दे रिएक्ट एंड हाउ विल दे मेक अ कंपाउंड? के वन प्लस एच सी ओ थ्री वन माइनस. पहले तो ये बात समझो कि ये जो प्लस और माइनस की साइन है इसका कोई मीनिंग नहीं है. इट हैज़ नो मैथमेटिकल इम्प्लीकेशंस. यहाँ पे कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन होने नहीं वाला है. ठीक है. दे जस्ट शो दैट potassium has lost one electron and bicarbonate has gained one electron to complete the to become stable. इतना हम लोग बोल सकते हैं. तो what will happen is ये जो 1 प्लस है ये यहाँ पे नीचे चला जाएगा, मतलब HCO3 के बॉटम में, और ये 1 माइनस यहाँ पे नीचे आ जाएगा K के बॉटम में. तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, K1 HCO3 ब्रैकेट में डाल के फिर यहाँ पे 1. तो मैं समझा क्या हुआ? जो उनकी वैलेंसीज है आपस में क्रिस क्रॉस होके एक दूसरे के बॉटम में लिखनी है तुम्हें. नाउ लुक एट द वैलेंसीज. आर दे 1? आर दे 1? यू डू नॉट राइट 1. If they both are 1, you do not write anything. If they both are 2, you do not write anything. If they both are 3, you do not write anything. So if the valencies are the same number, you can just ignore it and you can write it like this, KHCO3. Sir, if there is two or so, like here. I will show you. You will give me the example. I will show you, but first understand this one. KHCO3. This is the chemical formula of potassium bicarbonate. ये है केमिकल कंपाउंड. ये तुम्हारा कंपाउंड है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और ये उसका फॉर्मूला KHCO3. ये फॉर्मूला हमने बनाया. कैसे बनाया फॉर्मूला? बिकॉज वी न्यू द वैलेंसीज, वी न्यू द वैलेंसीज, वी न्यू द सिम्बॉल्स. तुम्हें सिम्बॉल्स नहीं याद है तुम कुछ नहीं कर सकते. तुम्हें सिम्बॉल्स याद है लेकिन वैलेंसी नहीं याद है, तुम कुछ नहीं कर सकते. तुम्हें सिम्बॉल्स और वैलेंसी पता है तो तुम फार्मूला बना सकते हो. ये मेथड से, क्रिस क्रॉस मेथड से. और अगर तुम फार्मूला बना सकते हो तो ही तुम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो. सो दे आर ऑल रिलेटेड. फर्स्ट यू शुड लर्न सिम्बॉल्स, then you should learn valencies, then you should know criss-cross method to create formulae, then you can balance chemical equations. Cannot directly learn chemical equations, cannot think about them directly. Okay, so this is the method. तुम लोग नोट किया? ये नोट किया क्या? ये नोट करो प्लीज़. नोट दिस, क्योंकि आगे हम लोग ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे अभी, एंड आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू फॉर्म केमिकल फॉर्मूले. बताऊंगा. Excuse me, sir. Yes. Sir, the doorbell just rang. Can I open the door? Yeah. No. तो क्लास कितने बजे जाना है? 2:30. लिख लिया इतना? Sir, 1 minute. Done, sir. Okay. Okay, great. Let's take one more example. इसको इरेज करना तो और झंझट है.
ठीक है, नीचे जाते हैं. यस, क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. एनीवन. Hydrogen H H1 plus. Okay. Aditya. Oxygen. O2 O2. minus. Great. So this 2 will go here in the bottom. This 1 will go here in the bottom, and it will become H2O. Make sense? Water का formula बन गया. क्या? One more. So can I say ammonium Of course, you can say anything, whatever you want. NH4 1 plus. Okay. Aditya. Bromine. Br 1 minus. So this 1 will go here in the bottom, this one will go here in the bottom. NH4Br. Did I write 1? No, I did not write 1 because they get cancelled. So NH4Br. What is the name of this? Ammonium bromide. तो एक तुमने देखा, ये जो नॉन मेटल होता है ना, हमेशा उसको सेकंड लिखते हैं. द सेकंड नेम इज नॉन मेटल, और उसके एंड में एक सफिक्स लगाते हैं. इसको बोलते हैं सफिक्स. SUFFIX. सफिक्स. सफिक्स जो नॉन मेटल के एंड में लगता है ना, दैट इज IDE. ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइड, कार्बाइड, ऐसा सफिक्स लगता है. बट हमेशा IDE नहीं लगता है, किसी और केस में कुछ और भी हो सकता है. यस, क्या समथिंग एल्स पॉजिटिव. Magnesium Mg2 प्लस. Boron. बोरॉन नहीं, ये नहीं, कुछ और बता. Sir, carbon. मैग्नीज नहीं, कुछ और बता. कुछ ये बता ना, रेडिकल बता ना. Radical. अरे तू तेरे चार्ट में से देख के बता. Okay. Sir, sulfide. सल्फाइट मतलब SO3 2 माइनस. Yeah. हाँ, दिस मेक सेंस. ये एक अच्छा कंपाउंड बनेगा इससे. तो ये बनेगा Mg2 SO3 2, है ना. लेकिन 2 कैंसिल हो जाएंगे एंड वी गेट MgSO3. MgSO3 क्या है? मैग्नीशियम सल्फाइट. कैसे लिखना है इसको? Sir, like in one of the videos, I saw that like bromine damages everything which comes like near it or something. Yeah, it is highly corrosive, reactive. Damage Like is because it is very reactive. Yes, Sir, K. hydrogen is also the same, right? No, it is not reactive. Hydrogen is not reactive. It is combustible. It catches fire. But bromine is reactive. They both are different. Yes, K. One more metallic. Nickel Ni 2 plus. plus. Yes. Okay. Aditya. Zincate. Zincate. Okay. ZnO2 minus. Is it correct? Sir, it is, yeah. ZnO2 minus or something else? Sir, ZnO2 minus and then below it comes to. ZnO2 2 minus, like that? Yeah, O22. Okay. ZnO2 2 minus. ZnO2 2 minus. Okay. So this 2 minus, this 2 will go here in the bottom. This 2 will go here in the bottom. It will become Ni2 ZnO2 twice. लेकिन ये 2 कैंसिल हो जाएंगे and I will get Ni ZnO2, that is nickel zincate. इसको ऐसे लिखना है. समझा कैसे क्रिस क्रॉस मेथड यूज होती है या नहीं समझा? और एक लेते हैं, और एक. यस, क्या एनी वन मेटालिक रेडिकल.
ओके, वेरी नाइस, एल्यूमिनियम Al3+। अब देख, सुन मेरी बात आदित्य, मेरे को कोई ऐसा नॉन मेटालिक रेडिकल बता जिसकी वैलेंसी या तो 1+ है या तो 2, सॉरी, या तो 1- है या तो 2- है, तो मज़ा आएगा थोड़ा। 2-। हाँ बता ना, चलेगा तू। सल्फर प्लम्बाइट। अरे यार, तू ऐसे अजीबो गरीब नाम क्यों दे रहा है? तू थोड़ा कॉमन नाम देना, सल्फेट है, हाइड्रोक्साइड है। सर कार्बोनेट। हाँ कार्बोनेट, हाँ ये सुना हुआ है ना, CO3 2-। सही है, CO3 2-। प्लम्बाइट, यस। प्लम्बाइट कहाँ से आएगा? तो क्या होता है कि सी देर आर इन केमिस्ट्री यू विल कम अक्रॉस सम कॉमन केमिकल्स, ठीक है? वो कॉमन केमिकल्स का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, तो उनके वैलेंसीज और उनके जो सिम्बॉल्स है, तो इसके लिए ये एक्सरसाइज, ये जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं ना, बहुत काम आती है। this 3 will go down here and this 2 will go down here, ठीक है? So Al2 CO3 the whole bracket 3, Al2 CO3 thrice, क्या बोलना है इसको? Al2 CO3 thrice, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। समझा क्या? आदित्य को क्या हो गया? फ्रीज हो गया हो? ठीक है, ठीक है। सो चलो, यहाँ तक तो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। यू नो हाउ टू फॉर्म और राइट केमिकल फॉर्मूले ऑफ अ कंपाउंड यूजिंग वैलेंसीज, क्रिस क्रॉस मेथड। Okay, now there are some rules, Kea. If a compound contains only two elements, such that one is metal and other is non-metal, then first you write metal, then you write non-metal, and then you add the suffix IDE. जैसे सोडियम एंड क्लोरीन अगर है तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरीन नहीं लिखना, सोडियम क्लोराइड, IDE सफिक्स डालना। मैग्नीशियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फाइड, है ना? ठीक है, ओके। देन रूल 2 इज, इफ अ कंपाउंड कंटेन्स टू नॉन मेटल्स, then you have to use prefix like mono, di, tri, tetra, penta. ये mono, di, tri, tetra, penta किसके लिए है? For the number of atoms present in the compound. अगर CO है, क्या? CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। रूल नंबर 3, अगर 3 एलिमेंट्स है, टर्शरी कंपाउंड्स बोलते हैं इसको, और उसमें एक ऑक्सीजन है, तो एंड में ATE सफिक्स आता है, ठीक है? अगर ऐसे कंपाउंड्स में नंबर ऑफ ऑक्सीजन चेंज हो रहे हैं, तो वन विथ मोर ऑक्सीजन will have the suffix ATE and the one with less oxygen will have the suffix ITE. अभी इसका मीनिंग मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ ही बता सकता हूँ। एग्जाम्पल इज NaNO3. NaNO3 is sodium nitrate because it has 3 oxygen. But see NaNO2 is sodium nitrite क्योंकि उसके पास 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कम है तो ITE लगा सफिक्स में, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ATE। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, बट CaSO3 कैल्शियम सल्फाइट। मोर ऑक्सीजन ATE, लेस ऑक्सीजन ITE। ठीक है, याद रहेगा ये रूल? ओके। if in a compound oxygen is less than the oxygen present in compound ending with ITE से भी कम ऑक्सीजन है अगर, तो उसके आगे लगता है हाइपो, ठीक है? और ATE से ज्यादा ऑक्सीजन है तो उसके आगे लगता है पर। कैसे, इसको मैं बताता हूं, देखो KClO है, KClO में
द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज ओनली 1। तो आगे हम लोग लिखते हैं पोटेशियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। उसके बाद आता है पोटेशियम क्लोराइड, उसके बाद आता है पोटेशियम क्लोरेट KClO3, और लास्ट में आता है पोटेशियम पर क्लोरेट KClO4। आई विल नेम इट एंड शो यू। सबसे पहले आता है KClO, फिर आता है KClO2, KClO3, KClO4। देखो ये है, इसके एंड में क्या आएगा, ATE, नो आई एम सॉरी ITE, क्योंकि कम है ना इसमें। सो वी विल हैव ITE इन द एंड, हियर वी विल हैव ATE। सो इसका नाम क्या है किया, पोटेशियम 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 क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, पोटेशियम पोटेशियम क्लोरेट, ओके क्लोरेट। अच्छा, 8 से भी कम ऑक्सीजन है अगर, यस आदित्य। Sir, so for non-metals like ITE and ATE is used. No. It is just for the, yeah, you can say that, but it is just for the ending, for the suffix part. In the end, whatever non-metallic element is there, it has to be ended with a suffix IDE or ATE or ITE, like that, ठीक है। इसके मैंने रूल्स अभी डिस्कस किए हैं, मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तभी तू देखना इसको एक बार, तू चला गया था बीच में, ठीक है। KClO में हमें हाइपो ऐड करना है, हाइपोक्लोराइट, ठीक है। और KClO4 में क्योंकि वो 8 से भी ज़्यादा है तो पर क्लोरेट लिखना है, क्लोरेट, ठीक है। कैन वी नेम देम ऑल अगेन। KClO को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 1, पोटेशियम हाइपोक्लोराइट। KClO2 को पोटेशियम हाइपोक्लोराइट, सॉरी पोटेशियम क्लोराइट। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, KClO4 पोटेशियम पर क्लोरेट। पहले तो ये दोनों याद रखो तुम, क्योंकि ये बेसिक है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है, लेस है, तो पोटेशियम क्लोराइट। नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 है तो पोटेशियम क्लोरेट। नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 से कम है, पोटेशियम हाइपोक्लोराइट। नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 से ज़्यादा है, पोटेशियम पर क्लोरेट, ठीक है। ये तुम्हारी बुक में भी दिया है, ये एग्जाम्पल्स दिए होंगे, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना। देन कम्स एसिड। एसिड के हमेशा शुरुआत में हाइड्रोजन होता है, तो इट स्टार्ट्स विथ हाइड्रो। द नेम ऑफ एसिड इज ऑलवेज हाइड्रो, स्टार्ट्स विथ हाइड्रो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हाइड्रो नहीं लगाते हम लोग, जैसे इसमें हाइड्रो नहीं लगाते हैं। इसमें जो तुम्हारा नेगेटिव रेडिकल होता है उसके ऊपर से नाम आता है सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। तो एसिड के नाम में ऐसा कोई रूल नहीं है, बट देर आर सम टिपिकल नेम्स विच यू शुड रिमेंबर। बेसिस के नाम वेरी सिंपल, पहले मेटल का नाम आएगा और फिर हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देन देर आर सम ट्रिवियल नेम्स, ट्रिवियल मतलब कॉमन नेम्स जो किसी रूल से गवर्न नहीं है, जैसे नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड इज नोन एज अमोनिया, बेटर नोन एज अमोनिया। सोडियम क्लोराइड इज नोन एज सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड इज नोन एज वाटर, वी नेवर कॉल इट हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ तक सिखाया है आज। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डू केमिकल इक्वेशंस। सो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही है अभी आगे, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा जल्दी। इट इज़ नॉट मच लेफ्ट मच, बट अभी आज जो मैंने सिखाया ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Sir, I guess in our like
आई नो आई एम वेरी मच अवेयर. रुको मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ.